Fatma Irfan Sheikh. She is a digital content creator, influencer, blogger, and an entrepreneur who founded Glossip's Beauty Bar. With a social media following of almost 1 million, let's put our hand together to invite Ms. Fatma on stage. How are you guys doing? I hope you guys are having a great evening. So, I'm Fatma, as I was introduced. मेरी talk थोड़ी सी light होगी in comparison to all the powerful talks we've had. I hope that's okay with all of you. So, this is also my first time giving a TED talk, so let's just hope I make it worth everybody's while. अच्छा, so जो आज का हमारा topic है, that is a glimpse into tomorrow. But I'm here to share a little bit of my journey, of my story with all of you. And I cannot do that without taking you guys back into the past. So this is a story, this is my story, but I'll tell you how it starts. So I was born in a educationist household with my grandparents, okay? And you can imagine, like सिर्फ आप ऐसे सोचने, sophisticated, smart, genius किस्म के लोग. And I was the creative kid in that family. The one who liked everything like colors, art, fashion, makeup, all the girly things. I'm sure that you guys can relate. Everything that makes us excited about creativity or creative things. So that's where it started. Everybody had that mindset that, Fatma, it's great that you like all of these things, but we're career-minded people, so like you have to think about something eventually. And I kept saying, yeah, I'll do something out of this eventually. I will. So now let's fast forward to 2014. So this is when I was 18 years old and two major things happened in my life. पहली चीज़ ये थी, पहली चीज़ तो खैर थोड़ी सी change वाली थी, दूसरी चीज़ बहुत ही cool थी. But the first thing that happened was that me and my family, we moved to a completely new city. So that meant no friends. And this was my university age, by the way, so all of you who are in university, you can probably imagine, okay, moving to a new place with no friends, no social life, and no know-how of how things work, it's a huge change that happened. मगर जो cool चीज़ हुई, do we have any millennials out here? Millennials हैं यहाँ पर हमारे पास या सिर्फ Gen Z है? यार कोई millennial नहीं है? अच्छा ठीक है, millennials हैं. So whoever millennial is over here, they would know कि जब हमारे QWERTY फ़ोन्स से हमने पहली दफ़ा अपने स्मार्टफोन्स लिए थे या अपग्रेड किया था तो कितनी कूल चीज़ थी एक. So that is what happened. I got to have my first ever smartphone. अब उस टाइम पे when everything was all about this spare time that I had on my hands, क्योंकि होता है even though projects थे, काम था, सब कुछ था, मगर spare time भी था. I just wanted to do something very productive with my time while I was having fun in it. तो उस टाइम पे जो मेरे best friend थे, who is now my husband by the way, I asked we'll discuss that too someday. But what happened was that he told me, Fatma, तुम्हारे हाथ में जो ये चीज़ है, this mobile phone, this is what connects you to the whole world. इसमें इतनी opportunities हैं that you can avail. और साथ साथ you can even enjoy all of the things that you would do. I said ठीक है. We explored online platforms like Fiverr. अब उस time पे Fiverr was not very famous. Like I'm not sure if most of you know it over here, but it is a place where you can upload your gigs. जो चीज़ आती हैं आप सबको, आप वो upload करते हो, बताते हो कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, आपको clients reach out करते हैं and then you do what they have asked you to do. मुझे आर्टिकल राइटिंग के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स ने रीच आउट किया. आई रोट इट फॉर देम. इट वॉज अगेन वन ऑफ माई पैशंस, आर्टिकल राइटिंग. आई डिड दैट. रिव्यूज़ इतने अच्छे आए, आई वॉज सो शॉक्ड एंड स्टन्ड. मैंने कहा अच्छा ठीक है, लाइक ये तो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स भी नहीं थे, बट येट व्हेन आई डिलीवर्ड इट दे लाइक्ड इट. मैंने सोचा आई थिंक इफ आई कैन डू इट फॉर अदर पीपल, मे बी इट्स टाइम दैट आई शुड पब्लिश माई ओन ब्लॉग और मैं उन चीज़ों के बारे में लिखूँ जो कि एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. आई एम श्योर उसके अंदर ज़्यादा पैशन नज़र आएगा, उसके अंदर बेहतर काम नज़र आएगा. एंड दैट्स व्हेन आई लॉन्च्ड माय वेबसाइट और माय ब्लॉग, एज यू वुड लाइक टू कॉल इट. इन्हीं गिग्स के दरमियान में एक और गिग आई जो कि बड़ी अनयूजुअल थी. एंड दिस इज़ वेयर द जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड बाय द वे.
this journey was that gig आई to make a video. This was a client जिन्होंने मेरे articles पहले देखे थे. उन्होंने कहा आप जब लिख लेती हैं, I'm sure कि आप बोल भी लेंगी. I was like क्या करना है? So they said कि आपने एक वीडियो बनानी है, हम आपको products भेजेंगे. You just have to make a video and apply the products, show them, and that's it. अब मैं university student with no camera with myself, no tripod, no filming equipment of any sort. How would I do this? But you know, like जिस तरह से बड़े कहते हैं कि बेटा काम को कभी ना नहीं बोलते. I was like जो है सो है, let's make it happen. I had a big window in front of my room. I had a vase, बड़ा लंबा सा गमला, हर किसी के घरों में होते, मेरे पास भी था, but it was in my room. And I had a selfie stick because obviously सबको selfies लेने का बहुत शौक है, मुझे भी बहुत था clearly. I just utilized those 3-4 things. I made the video and I sent it to them. Obviously it was just going to a client. तो जितना बंदा फ्री हो सकता है आराम से बिल्कुल विदाउट एनी हेसिटेशन, वो बिल्कुल दिल से वीडियो बनी. द क्लाइंट लव्ड इट. मैंने उनसे पूछा कि वो किस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट हो रही है. सो दे सेंट मी अ लिंक एंड इट वाज ऑन यूट्यूब. दैट्स व्हेन आई वंडर्ड कि अगर कोई और मेरी वीडियो को अपने ब्रांड पे पोस्ट कर रहा है एंड दे आर गेटिंग अमेजिंग रिव्यूज आउट ऑफ इट, व्हाई डोंट आई डू दैट फॉर माई सेल्फ. यहाँ पे हमने फुल सोचना शुरू किया. मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड हु इज़ माई हस्बैंड, द वन आई टोल्ड यू अबाउट. यस, सो हमने ऐसे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू किया अबाउट द नेम एंड दैट्स व्हेन वी केम अप विद द नेम ग्लॉसिप्स. लेकिन एक छोटा सा ग्लिच था यहाँ पे. पाकिस्तान में यूट्यूब बैंड था एंड दिस वॉज अ स्ट्रगल दैट आई एम श्योर दैट पीपल हु हैव बीन इन दैट एरा दे नो. तो VPN यूज़ किया, अकाउंट बनाया. आई वाज लाइक इट्स इवन बेटर, बहुत अच्छा है, बिकॉज आई डोंट हैव द पीपल अराउंड मी हु आर गोइंग टू हैव ओपिनियंस ऑन व्हाट आई एम डूइंग. फैमिली को तो बताना था ऑब्वियसली, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है ना, हाउ डिड यू टेल योर फैमिली. फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया. लाइक आई टोल्ड यू गाइज, सुपर जीनियस किस्म के लोग. अब मैं उनको जाके बता रही हूँ कि दादी जान, दादा जान, आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन दिस प्लेस कॉल्ड यूट्यूब. And they're like, अच्छा, and they took it very casually. मतलब रोक टोक भी नहीं की, thank God for that कि रोक टोक भी नहीं की, but they took it very casually. And I was also doing this because I was passionate about doing this, making videos, talking to myself in the mirror. That was the beginning, let's say. Making makeup videos, skincare videos. शुरू में तो confidence भी नहीं था बात करने का, बस वीडियो बनाती थी, जो भी कर रही होती थी, बाल कलर करने, श्योर दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट एट होम, दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट. पीछे वॉइस ओवर डाल के आई यूज्ड टू अपलोड दोज वीडियोज़. यूट्यूब अनबैन हुआ, पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग आउट. माई फैमिली, लाइक एक्सटेंडेड फैमिली, उन तक भी मेरी वीडियोज़ गई. फिर मेरी यूनिवर्सिटी में लोग मुझे जानना शुरू हुए, पहचानना शुरू हुए. इवन इन द मॉल्स पीपल वुड कम अप टू मी एंड से, हे, यू आर ग्लॉसिप्स, राइट? एंड people around me would be like, wait, like तुम कुछ कर रही हो, like are you like doing something? And I'll tell you why. Because when the senior citizens in my family used to ask me, बेटा what do you do? तो मैं उनको एक ही जवाब दे सकती थी कि मैं वीडियोस बनाती हूँ. किधर? यूट्यूब पे. वो क्या होता है ये, किस चीज़ की? I'm like मेकअप वीडियो. मतलब there was no label. डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ये जो एक लेबल है, ये तो फिर टाइम आया, नहीं तो अब जाकर आया. पहले तो इट वाज जस्ट लाइक यू आर डूइंग समथिंग नहीं, एंड इट वाज लाइक दैट. सो साथ ही साथ आई वाज परस्यूइंग माय डिग्री. तो बड़ों को बताने के लिए एक सॉलिड जवाब होता था, फैशन एंड डिज़ाइन में डिग्री कर रही हूँ अंकल आंटी. तो इट यूज टू मेक सेंस. अच्छा बेटा ठीक है, लाइक अ गुड करियर चॉइस, ठीक है, पैसे बनाओगी ना आगे जाके, गुड. आई वाज लाइक जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड मैं वहाँ से हट जाती थी इस बात पे. So even I took it very casually until the time जब मेरे 2 साल मुकम्मल हुए of making constant YouTube videos कि मेरा पहला पेज चेक आया YouTube से, which was not much, let me tell you guys that, क्योंकि मेरी पहली दफ़ा थ्रेशहोल्ड जो थी YouTube की पेमेंट की वो क्रॉस हुई थी. 2 साल लगे. I wasn't even looking forward to the money. I was doing it because I loved doing it. $100 आए मेरे पास, जो उस टाइम पे आई थिंक 9,300 थे. You cannot imagine how hard that hit me. That Fatma, this is real. मतलब आप अपनी पसंद का कुछ कर सकते हो और उसके साथ साथ you can even earn from it. That's a possibility. It hit me hard, and I was like, okay, like
I need to be more focused, I need to do what I'm doing. बट मेरी दादी जान की साथ साथ एक शर्त थी. मेरी दादी जान ने कहा तुम्हें जो करना है तुम करो, मगर पढ़ाई नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए. Educationists, obviously the right thing that they said, not going to say कि उन्होंने गलत बोला, बिल्कुल सही बोला. She said you have to keep focusing on your studies as well. I said okay. 2017, I hit 100,000 subscribers on YouTube. 100,000 subscribers? Like अभी इस स्टेप टॉक पे आने से पहले मैं 100 लोगों के ऑडिटोरियम में बात करने से कतरा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैंने कितने सालों से बात नहीं की है. मेरे दिल ने बोला फातिमा लाइक यू नो यू कैन डू इट, बट लाख लोग मैंने तो कभी नहीं देखे एक साथ, और उतने लोगों ने मुझे एक साथ फॉलो किया, वो मुझे अप्रिशिएट करते थे. आई एम नॉट गोइंग टू से कि स्ट्रगल्स नहीं थे इस पूरे प्रोसेस में, बिल्कुल थे. लोगों को समझाना क्या करते क्या हो, व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट इज़ द इंटरनेट, आप मतलब इज़ इट सेफ, इज़ इट नॉट, इज़ इट ओके. देयर वर अ लॉट ऑफ क्वारल्स दैट केम अलॉन्ग विद दिस. उन सबको डील किया, उन सब से आगे आए. सो इफ़ आई टेल यू दैट अभी this Fatma would go and tell that 18-year-old Fatma कि अगर तुम जो करती हो वो करती रहो ना, तो तुम 10 साल बाद इतने अमेजिंग लोगों के सामने बैठ के इतने ग्रेट माइंड्स के बीच में आकर अपनी स्टोरी सुना रही होगी, तो she would be like no you're joking. She wouldn't believe it because it's that big a deal. So while I'm here sharing my story with all of you, the only reason अब मैं बताती हूँ why I'm actually sharing this story. This story I'm sharing because यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हर बंदे की अपना एक दिमाग है, हर बंदे का अपना एक ड्रीम है. एंड ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ड्रीम्स अभी आज रिकग्नाइज हो रहे हों. ज़रूरी नहीं है कि उनके बड़े उनके ड्रीम्स को समझ रहे हों, उनके कॉलीग्स को समझ आ रहा हो कि वो क्या करना चाह रहे हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ अनटच्ड अपॉर्चुनिटीज़ इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड यू आर द पीपल जो इन सारे ड्रीम्स को पूरा करेंगे. Like that's the tomorrow that we are looking forward to. So guys, if you are persistent with what you love, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आज समझ नहीं आ रही, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद समझ आएगी. And what you will achieve out of it, पहले तो satisfaction, एक pride अपने ऊपर कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, it's something great. पहले तो वो, और फिर दूसरा that you would have achieved something that you have worked hard for and did something which was out of the box. So you are all of those opportunities sitting right here who are going to do things in the future that are going to be out of the box, and I'm looking very forward to it. Okay, you guys are an amazing audience. Thank you so much for having me.